اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا، جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ خدا نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خداوند ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ ہم ایک اور تیرے مقدس دن کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ خداوند شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی بخشی ہے، صحت بخشی اور ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تیرے بیٹے یسوع کے خون کی قدرت کے وسیلے سے تو نے ہمیں سنبھالا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند کہ آج کی یہ عبادت ہم میں سے ہر ایک کی برکت کا باعث ہو۔ خداوند بہت سے لوگ آج بھی آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند جہاں بھی تیرے لوگ جمع ہیں، تیری حضوری اور تیرا تخت لگے تیرے لوگوں کے درمیان لگ جائے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی موجودگی کے وسیلے سے لوگوں کو برکت دے، تو اپنے پاک روح کا مسا دے، پاک روح کی معموری بخش دے، ہمارے خیالات اور دھیان تیری طرف لگ جائیں، ہماری سوچیں تیری طرف لگ جائیں، اور دنوی خیال فکریں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہمارے ذہن سے دور ہو جائیں۔ شیطان کا کوئی حملہ ہمارے ایمان کو کمزور نہ کرنے پائے، بلکہ تیرے پاک روح کی آگ کی معموری سے ہم پاک ٹھہریں، اور تیرے پاک روح سے معمور ہو کر تیری تعریف کرنے والے، تیری حمد و ثنا کے لیے گیت گانے والے، اور تیرے بیٹے یسوع سے مانگنے والے، اور تیرے بیٹے یسوع کے باتوں کو سننے والے بن سکیں۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، اور جہاں بھی لوگ ہمارے ساتھ عبادت میں جمع ہیں، ہم ان کے لیے اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہوں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ تیرے در پہ دعا کو آئے ہیں، تیرے در پہ دعا کو آئے ہیں، تیرے آگے سر جھکائے ہیں، تیرے در پہ دعا کو آئے ہیں، تیرے در پہ بخش دیتا ہے تو خطاؤں کو، اور سنتا ہے تو دعاؤں کو، بخش دیتا ہے تو خطاؤں کو، اور سنتا ہے تو دعاؤں کو۔ ہاتھ ہم نے جب اٹھائے ہیں، تیرے در پہ دعا کو آئے ہیں، تیرے در پہ جو بشر میں قرار آیا ہے، اس نے تجھ میں قرار پایا ہے، جو بشر میں قرار آیا ہے، اس نے تجھ میں قرار پایا ہے۔ تو نے اعلیٰ
हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये रसूलों के अकीदे के अल्फाज हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है, और जब हम मिलकर अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही ईमान का इजहार करते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरबा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुने कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 22 गाएंगे। ज़बूर नंबर 22, ज़बूर नंबर 22 चौथा हिस्सा। ज़बूर नंबर 22 चौथा हिस्सा। याद यहोवा दी सब करन के कंडे सारी दुनिया दे। ज़बूर नंबर 22 चौथा हिस्सा। याद यहोवा दी सब करन के कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करन के कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रचोला बनके आगे पाक खुदावंद दे। दिल दे नाल रचोला बनके आगे पाक खुदावंद दे। सारियां कौमां झुक झुक जावन, डर रखण गियां ओसेरा। सारियां कौमां झुक झुक जावन, डर रखण गियां ओसेरा। जो जो राज यहोवा दा है, हाकिम है ओ कौमां दा। जो जो राज यहोवा दा है, हाकिम है ओ कौमां दा। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावनगे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावनगे। अपनी जान बचा ना सकते, मिट्टी विच मिल जावणगे। अपनी जान बचा ना सकते, मिट्टी विच मिल जावणगे। रब दी करेगी आबाद एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। रब दी करेगी आबाद एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। आवन वाली पीढ़ी को रब दी खबर पहुँचावेगी। आवन वाली पीढ़ी को रब दी खबर पहुँचावेगी। दसेगी सच्चाई रब दी औलादू जो जमणगे। दसेगी सच्चाई रब दी औलादू जो जमणगे। करेगी सारे सच्चे काम खुदावंद दे। होना करेगी सारे सच्चे काम खुदावंद दे। याद यहोवा दी सब करन के कंडे सारी दुनिया दे।
के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ख़ास तौर पर इस दुआ में खुदा का शुक्र करेंगे कि हम ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं जो हर जगह मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है और उसकी मौजूदगी के वसीले से हम बरकत पाते हैं। हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए और अपने घरानों के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु के वसीले से हम बरकत पाते हैं और यीशु के वसीले से हमारे घराने बरकत पाते हैं और महफूज हो जाते हैं। हम पूरी दुनिया के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद पूरी दुनिया को भी महफूज करे, कोरोना वायरस को ख़त्म करे, और इसके साथ ही हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को एक ज़िंदा कलीसिया बनाए, ईमान से भरपूर गवाही देने वाली कलीसिया बनाए, और दुआ करेंगे खुदावंद जल्द दोबारा से मौका लाए कि हम फिर से खुदा के घर में इकट्ठे हो सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे ज़िंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ज़िंदा है और हर जगह मौजूद है। हमारा ईमान है खुदावंद के तू हमारे दरमियान मौजूद है और तेरी मौजूदगी से तेरे ईमानदार लोग बरकत पाते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारा इकट्ठे होना, बैठना, तेरे मुक़द्दस दिन पर तेरी इबादत करना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तू जानता है कि कोरोना वायरस के सबब से तेरे लोग तेरे घरों में इकट्ठे नहीं हो सकते। खुदावंद हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन खुदावंद हम तेरे घर में इकट्ठे होने की बरकत को भी मिस करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरी ये बरकत जो रफ़ाकत के वसीले से है, ये भी हमें दोबारा से मिले। खुदावंद तू दुनिया को बहाल कर, ताकि तेरे फजल के वसीले से ये दुनिया बहाल हो सके। दुनिया में तमाम सरगर्मियाँ जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं, लोगों का मेल जोल है, इबादती सरगर्मियाँ हैं, वो बहाल हो सकें और तेरे लोग दोबारा से तेरे घरों में जाकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद तू रहम कर और पूरी दुनिया को माफ़ भी कर। पूरी दुनिया से खुदावंद सारे ऐसी बातें जो तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं, जो गुनाह तेरी ये दुनिया तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करती रही है, ऐ बाप तो अपने बेटे यीशु के नाम से उन गुनाहों को बख्श दे और खुदावंद तू रहम करके इस दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा कर। और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें बहाल कर दे, हमारी कलीसिया को खुदावंद गवाही देने वाली और ज़िंदा कलीसिया बना। और खुदावंद दुआ करते हैं तमाम मसीही अदारों के लिए जो सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में और इसी तरह खिदमत के शोबे में काम कर रहे हैं। खुदावंद तमाम इदारों को बरकत दे, अदारों को चलाने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान को बरकत दे और उनकी रहनुमाई कर, ताकि उन अदारों की तरक्की के लिए काम कर सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि FC कॉलेज को भी बरकत दे और FC कॉलेज के लिए तमाम इंतज़ामी अफसरान की दुआ करते हैं, जितना स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि तुम अपने बेटे यीशु के नाम से सभी की हिफाजत कर, सभी के घरानों की हिफाजत कर, ताकि लोग इस अदारे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 66 गाएंगे। ज़बूर नंबर 66 सारे लोगों साडे रब नूं दान दान आके गाओ। ज़बूर नंबर 66 दूजा हिस्सा। सारे
ते दुर्भागा माही विच फसाया माही विच फसाया तू साढ़े से सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। और इस वक्त हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए और हमारे घरानों में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और हमारा ईमान है कि हमारा यीशु ज़िंदा है और उसके नाम में फ़तह है, कुदरत है। इसलिए हम बड़े ईमान के साथ जहाँ पर भी मौजूद हैं अपने लिए और अपने घरानों के लिए दुआ कर सकते हैं ताकि हम उनके लिए शिफा मांग सकें। आए हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कादिर मुतलक बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम की कुदरत पर यकीन रखते हैं और हमारा ईमान है कि तेरे बेटे यीशु के नाम में फ़तह है। तेरा कलाम ये फरमाता है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। और खुदावंद हमारा ईमान है कि यीशु के वसीले से ही फ़तह मिलती है, यीशु के वसीले से ही शिफा और मौजज़ात होते हैं। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, उन सबको और उनके घरानों को तेरे खून की कुदरत में महफूज करते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने की कुदरत से हम सभी धुल जाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु
नाम से हम सभी शिफा पाएं। खुदावंद हमारी हर एक जिस्मानी दर्द, तकलीफ, परेशानी, शुगर की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ या ब्लड प्रेशर का जो मसला है या किसी भी किस्म की जिस्मानी दर्द है, यीशु के नाम से उसे हुक्म देते हैं। खुदावंद हम अपनी कुव्वत से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि तेरे बेटे यीशु का नाम अख्तियार वाला है, तेरे बेटे यीशु का नाम कुव्वत वाला है। इसीलिए यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हर एक बीमारी हमारे जिस्म से दूर हो और हम शिफा पाएं। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उनको भी तेरी हुजूरी में याद करते हैं। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं भाई नईम तबस्सुम के लिए, भाई इमैनुएल के लिए, मिसेस अलिशबा कमाल के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, बहन हिना की बड़ी बहन के लिए भी दुआ करते हैं। इसी तरह से मिसेस मार्था अनवर के लिए दुआ करते हैं, भाई जिक्रिया भट्टी के लिए दुआ करते हैं। और खुदावंद दुआ करते हैं तो अपने फजल से इन सब को छू, और भी जितने कलीसिया में किसी भी बीमारी में मुब्तला है उन सब के लिए दुआ करते हैं। तो अपने फजल से सभी की ज़िंदगी में मौजज़ा कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से सभी शिफा पा जाएं। भाई आसिफ रशीद के लिए भी दुआ करते हैं, खुदावंद तुझसे भी छू और मौजज़ा कर, उसकी ज़िंदगी में भी शिफा का काम हो। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से हर एक पचीदगी को ख़त्म कर, तू छू और मौजज़ा कर, ताकि तेरी मेरास है बाप उन्हें मिले। तू फजल कर, तू रहम कर और अपने लोगों को औलाद की बरकत बख्श दे। और खुदावंद दुआ करते हैं पूरी दुनिया को शिफा बख्श दे। खुदावंद दुनिया को शिफा की ज़रूरत है, दुनिया को यीशु की ज़रूरत है। खुदावंद दुआ करते हैं कि अपने फजल से यीशु के वसीले से दुनिया पर रहम कर। और पाकिस्तान में भी जितने लोग कोरोना के बायस से बीमार हैं, खुदावंद उनके लिए शिफा मांगते हैं। खुदावंद तू इस वबा को ख़त्म कर, और दुनिया में जितने बीमार हैं वो तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा पा जाएं। भाई राज के लिए दुआ करते हैं, उन्हें भी तू छू और शिफा बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम एक और बेटियों से गीत सुनेंगे। अच्छा, बाद में गाना। इस वक्त एक ज़रूरी ऐलान आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। ख़ासतौर पर जिस तरह से हालात दिन में दिन ख़राब हो रहे हैं, हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें महफूज रखा है। आइंदा के लिए भी अपने आप को महफूज रखने के लिए खुदावंद से दुआ भी करते रहें, और अपने आप को महफूज रखने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर जाने से भी इज्तनाब करें। और ख़ास तौर पर हमने मुनासिब समझा कि अभी हम ऑनलाइन इबादत करेंगे। बहुत से चर्चेस खुल चुके हैं, लोग SOPs के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हुए। और हमारा ईमान ये हमें सिखाता है कि यीशु मेरे और आपके साथ मौजूद है। अक्सर हम अपने आप को दूसरे लोगों के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हम ईमान में कमज़ोर होते हैं। ज़रूर ईमान में मजबूत हों और ये जान रखें कि खुदावंद आपके साथ है। ये कोरोना वायरस ने ज़िंदगी को तब्दील किया है, लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया है, दुनिया को बदल दिया है, हालात बदल गए हैं। लेकिन इस बात में ये ज़रूर याद रखें, अगरचे खुदा के घर में रफ़ाकत में रहना आना एक बड़ी बरकत का बायस है, लेकिन असल में हकीकत जो खिदमत की है या असल में जो वफ़ादारी है वो यीशु के पास आना है और यीशु का हमारे पास आना। और ये असल में रफ़ाकत जो सबसे अहम है वो यीशु की और ईमानदारों की रफ़ाकत अहम है। इसलिए इन दिनों में जब हम चर्च में नहीं आ सकते, ज़रूर अपने आप को यीशु की रफ़ाकत में मजबूत करें, यीशु के साथ ईमान में आगे बढ़ें, ताकि हम ईमान में मजबूत होते हुए, रफ़ाकत में बढ़ते हुए, अपने आप को ईमान में कायम करते हुए खुदा के कलाम को सीखते रहें। और खुदावंद फिर से मौका लाएगा, हम इकट्ठे होंगे और इबादत करेंगे, लेकिन उस दौरान इस ईमान को कभी भी ना छोड़ें कि खुदावंद हमारे साथ नहीं है। इस ईमान में कायम रहें कि खुदावंद हमारे साथ है। अगर हम घर में इबादत करते हैं, खुदा वहाँ भी मौजूद है। अगर हम चर्च में आते हैं, खुदा वहाँ भी मौजूद है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, ये बाबरकत सिर्फ खुदावंद की मौजूदगी से ठहरती है कि इस बिल्डिंग में खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद होता है। इसी तरह जब हम घर में इबादत करते हैं तो वो वहाँ पर भी खुदावंद के मौजूद होने के वसीले से हम बरकत पाते हैं। इसलिए ईमान में कमज़ोर होने के बजाय जिस तरह से हम आजकल ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं, इस सिलसिले को जारी रखें और खुदावंद से दुआ करते रहें कि खुदावंद दोबारा से हालात को नॉर्मल करे और हम इबादत में जमा हो सकें। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब और उसका पहला बाब
और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। नए अहदनामे में से अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 11। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए थियोफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया, जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने का मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही अख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूप में वायर के साथ एक गीत गाएंगे, दे रूह का मसा, और हम खुदावंद के रूह के मसा को मांगेंगे ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस हो। दे रूह का मसा, दे रूह का मसा, दे रूह का मसा, दे रूह का मसा। कुदरत है तेरा कनाम, ऊंचा है तेरा नाम, कुदरत है तेरा कनाम, ऊंचा है तेरा नाम। तेरे ही नाम से बोलूं हालेलुया, तेरे ही नाम से बोलूं मंदिरों को खोलूं। दे
روئے پاک ہوا تن من میں بس جا روئے پاک ہوا تن من میں بس جا تاکہ میں کچھ بولوں ہلیلویا تاکہ میں کچھ بولوں بندنوں کو کھولوں دے دوں گا مسیح دے دوں گا مسیح آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے کلام کے لیے خود کو تیار کریں۔ خدا قدوس ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہمارا ایمان ہے کہ تیرے روح کا مسا ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمیں حکمت دیتا ہے تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑ سکے۔ خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل سے ہمیں سنبھال، ہماری مدد کر تاکہ تیرے کلام کو ہم سمجھ سکیں، اس سے برکت پا سکیں۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، ہم گزشتہ ایسٹر کے بعد کئی اتواروں سے ان تمام باتوں کو سیکھ رہے تھے جس میں یسوع نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا، اور آج ہم اس کی زمینی خدمت کے بعد ایک اور خدمت کو، ایک نئے اختیار کو، ایک اس ذمہ داری کو جس کو وہ پہلے بھی سنبھالتا ہے اور تجسم کے بعد دوبارہ سے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے آسمان پر گیا، اس کو دیکھیں گے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب کو دیکھیں، اعمال کی کتاب میں سے جو تلاوت آپ کے سامنے آج کی گئی ہے، اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب ہمیں اسی کے بارے میں سکھاتا ہے اور اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ مقدس لوکا نے اپنی کتاب کا جو اس نے تحریر کی، جس میں اس نے رسولوں کے اعمال لکھے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے کام جو انہوں نے یسوع کے آسمان پر چلے جانے کے بعد سر انجام دیے، اور ان کا آغاز وہ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے سے کرتا ہے۔ یہ یسوع کا آسمان پر اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے، اس کو عید صعود کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی صعود فرمانا، آسمان پر چلے جانا، اٹھایا جانا۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے زندہ ہونے کے 40 دن کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے، اور اس دوران میں مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ جب تک اپنے زندہ ہونے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے درمیان کا جو عرصہ ہے، پھر اعمال کی کتاب کا پہلا باب اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا۔ اور ہم بار بار یہ سیکھتے رہے ہیں گزشتہ اتواروں میں کہ خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو مضبوط کرے اور ثابت کرے کہ وہ زندہ ہے، وہ جسم کی حیثیت میں ہے، اور زندہ ہو کر اس نے موت پر فتح پائی ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو مضبوط کرتا رہا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاگرد یسوع کی گواہی دے سکیں۔ اور اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے اس مقصد کو پورا کر چکے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے مقصد کو بھی پورا کر چکے، ان کو مضبوط کر چکے، تو اس کے بعد عید صعود کا موقع آتا ہے، یعنی صعود فرمانے کا۔ یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک ضروری بات تھی، اگرچہ ہم میں سے اکثر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ زندہ رہنا تھا تو وہ زمین پر زندہ رہتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا جو مقصد ہے، تجسم اختیار کرنے کا مقصد جو ہے، وہ صرف اور صرف کفارہ، دنیا کا دوبارہ سے خدا کے ساتھ ملاپ کروانا، وہ دوری، وہ جدائی، وہ ناپاکی جو دنیا کی زندگی میں گناہوں کے سبب سے ہیں، دنیا کی زندگی میں نافرمانی کے سبب سے ہیں، اس نافرمانی کو ختم کرنا، اس نافرمانی کے وسیلے سے جو سزا ہے اس کو ختم کرنا، اس کے اثر کو ختم کرنا، اور اس جدائی اور دوری کو جو انسان اور خدا کے درمیان ہے
यीशु का अल्टीमेट या मुकम्मल मकसद था जो उसने इस दुनिया में पूरा किया। और उस मकसद को पूरा करने के बाद दोबारा से उसी अख्तियार को, जो यीशु का अख्तियार है, जो आसमानी अख्तियार और इलाही अख्तियार है, जो पूरी कायनात पर मुहित है, उस अख्तियार को हासिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दोबारा से आसमान पर चले गए। और ये यीशु का साउथ फरमाना, आसमान पर चले जाना, खुदावंद यीशु मसीह की एक और कुव्वत को जाहिर करता है, उसकी कुदरत को जाहिर करता है कि जिस तरह जमीन उसको, उसके जिस्म को कैद ना कर सकी, जमीन उसके जिस्म को जिंदा होने से रोक ना सकी, और वो अपने कहने के मुताबिक, अपने दावे और अख्तियार के मुताबिक जमीन के बंद को खोलकर जिंदा हुआ और जमीन उस पर कब्जा न रख सकी, इसी तरह से जमीन उसको आसमान पर जाने से भी न रोक सकी। ये जमीन से यीशु का आसमान पर सऊद फरमाना साइंसी तौर पर ग्रेविटी के असूल के खिलाफ, कशिश शकल के खिलाफ है। लेकिन जमीन जिसको यीशु ने बनाया, वो यीशु पर अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, बल्कि यीशु जमीन पर और आसमान पर और पूरी कायनात पर अपना अख्तियार इस्तेमाल करता है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने इस अख्तियार को मुकद्दस मत्ती की इंजील पर आसमान पर जाने से पहले जाहिर भी करता है। आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत में यीशु ने अपनी इस अथॉरिटी को बयान भी किया। ज़मीन उस पर अख्तियार नहीं रखती, बल्कि यीशु का अख्तियार आसमान और ज़मीन पर है, इसीलिए ज़मीन उसको रोक नहीं सकती, ज़मीन उसको कब्जा नहीं कर सकती, बल्कि उसका अख्तियार, उसकी बादशाही, उसकी कुदरत पूरी ज़मीन पर कायम है। और इस अख्तियार के मुताबिक वो ज़मीन पर आया, अपनी मर्जी से मुकर्रर वक्त पर खुदा के मंसूबे के मुताबिक इस दुनिया में आया और अपने मुकर्रर वक्त पर उस मंसूबे को मुकम्मल करके, जो खुदा का इलाही मंसूबा है, खुदा के इलाही मंसूबे के मुताबिक इस दुनिया में मसलूब होकर, जिंदा होकर, मौत पर फतह पाकर और अपने शागिर्दों को जिम्मेदारी देकर, अपने शागिर्दों को मजबूत करके कि वो उसकी बादशाही की मुनादी दुनिया में करेंगे, वो उसकी गवाही देंगे कि उसने मौत पर फतह पाई है, वो उस खुशखबरी की मुनादी करेंगे जो यीशु ने इस दुनिया के लिए दी है, उसको पूरा करके वो आसमान पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए चला गया। और ये खुदावंद यीशु मसीह की अपनी खिदमत में, उसके इख्तियार और मिनिस्ट्री में, ज़मीन पर फिजिकल जो मिनिस्ट्री है उसका इख्तिताम और एक नए इख्तियार और उस इख्तियार को दोबारा से संभालने और उस इख्तियार को दोबारा से ज़मीन पर कायम करने के लिए आसमान पर जाने का वक्त है। ये तजस्सुम से असेंशन तक का जो वक्त है, यानी तजस्सुम से सऊद फरमाने तक का जो वक्त है, ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी जिस्मानी खिदमत है। ये यीशु की खिदमत में से वो हिस्सा है जो उसने इंसानों के दरमियान रहकर किया। लेकिन इसके साथ ही यीशु ने मुकद्दस मत्ती की इंजील के 28वें बाब में कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से चला गया, जिस्मानी तौर पर वो आसमान पर उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी मौजूदगी आज भी ईमानदार महसूस करते हैं। उसकी मौजूदगी का तजर्बा इंसान आज भी अपनी जिंदगी में कर सकता है। इसका ये वादा हकीकतन सच है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है। दुनिया के इब्तिदा से यूहन्ना कहता है कि तमाम चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और इसी तरह से दुनिया के इख्तिताम तक भी यीशु ये वादा करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। शागिर्दों के लिए ये मायूसी का लम्हा हो सकता था। मसलूबियत से पहले जब यीशु अपने शागिर्दों को अपने मसलूबियत के बारे में और बाप के पास जाने के बारे में बताते थे तो शागिर्द परेशान हो जाते थे। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह का अपने शागिर्दों को बताना कि मैं आसमान पर जाऊंगा, मैं बाप के पास चला जाऊंगा, उनके लिए परेशानी का बायस था। यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब इसी पस मंजर में है, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। इसके बाद आगे 7वीं आयत में तूमा कहता है कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है।
तो राह कैसे जाने? यानी शागिर्द नहीं चाहते थे कि यीशु जाए, शागिर्द चाहते थे कि यीशु हमेशा फिजिकली उनके साथ रहे और बादशाही को कायम करे और हमेशा इसी तरह से मौजज़ात होते रहें, हमेशा लोग उसके मौजज़ात को इस दुनिया में इसी तरह से यीशु की मौजूदगी के वसीले से देखते रहें। यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब में यीशु ने अपने जाने की ज़रूरत का जिक्र किया। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। यानी उसने अपने आने का भी बताया, मैं बाप से निकला हूँ और दुनिया में आया हूँ और फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। उसने अपनी मंजिल, डेस्टिनेशन जो है वो भी बताई। लेकिन शागिर्द क्योंकि नहीं चाहते थे कि वो कभी जाए, हमारा भी ये सवाल हो सकता है कि यीशु क्यों गया, यीशु को कभी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन यीशु के वसीले से मौजज़ात हमें बताते हैं कि वो आज भी हमारे साथ है। शागिर्द जिस मौजज़ात की फिक्र करते थे कि वो मुमकिन नहीं हो सकेंगे, इसलिए यीशु को नहीं जाना चाहिए, वही शागिर्द बाद में मौजज़ात खुद करते थे। वही शागिर्द यीशु से कुव्वत पाकर, यीशु से बरकत लेकर, मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में हम देखते हैं, मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में यीशु का अपने लोगों पर, अपने शागिर्दों को बरकत देना और उसके बाद आसमान पर उठाया जाना शागिर्दों के लिए इस कुव्वत का सबब बना, इस बरकत का सबब बना कि जिसके लिए वो यीशु की तरफ देखते थे, वो यीशु के वसीले से, वो यीशु की इस दुनिया में जिस्मानी गैर मौजूदगी में भी आज तक मुमकिन हो रहा है। दुनिया में बहुत से खुदा के खादमों के वसीले से हम यीशु की मौजूदगी का, यीशु के मौजज़ात का तजुर्बा करते हैं। और यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और यीशु के वसीले से आज भी उसके खद्दाम और उसके लोग ईमानदार अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात का तजुर्बा करते हैं, जो कि सिर्फ यीशु की फिजिकल मौजूदगी से लोग समझते थे कि मुमकिन होंगे, वो आज भी मुमकिन है। क्योंकि यीशु ने ये वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, और उसके इस वादे की तकमील हम अपनी जिंदगी में तजुर्बा करते हैं। आप में से हर एक शख्स ने, आप में से अक्सरियत ने, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत दफा यीशु की मौजूदगी का अपने साथ तजुर्बा किया। अगरचे यीशु जिस्मानी तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसका साथ, उसका फजल, उसका रहम, उसकी मदद हमारे साथ मौजूद है और आज भी हमारे साथ मौजूद है। और उसने अपनी इलाही कुदरत को आज भी हमारे लिए जारी रखा है और उसकी जिंदगी, उसकी खिदमत आज भी जारी। यीशु का आसमान पर चले जाना उसकी खिदमत का, उसके अख्तियार और उसकी कुदरत का इख्तिताम नहीं है, बल्कि एक तसलसल है जो आज तक कायम है और रहती दुनिया तक, दुनिया के इख्तिताम के बाद भी कायम रहेगा। उसको आगे जाकर हम देखेंगे भी। और इस यहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के तसलसल को देखते हैं कि जब वो आसमान पर गया तो आसमान पर उसकी खिदमत क्या है, आसमान पर वो क्या करता है, जिसकी गवाही स्तिफनस अमाल की किताब के 7वें बाब में देता है। अमाल की किताब उसके 7वें बाब में मसीहियत के पहले शहीद का जिक्र है। मसीहियत का पहला शहीद मुक़द्दस स्तिफनस है, जिसने शहादत का रुतबा पाया, जिसको शहीद किया गया खुशखबरी को फैलाने के सबब से। और मुक़द्दस अमाल की किताब में मुक़द्दस स्तिफनस का जिक्र है 7वां बाब। इसमें मुक़द्दस स्तिफनस ने वास किया, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को उसने लोगों को तक बताया। और जब उसने अपने वाज मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद लोग जो थे वो गुस्से में आ गए, गुना गए, उन्होंने बातें सुनी। 54वीं आयत में लिखा है कि वो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूहुल कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। खुदावंद यीशु मसीह का जमीन से सऊद और उसका ये वादा कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। फिर उसके बाद आइंदा उसकी जो खिदमत है आसमान पर, उसको स्तिफनस बयान कहते हैं कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूँ।
इसी तरह अगर हम रोमियो के खत में देखें, रोमियो के खत उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के आज भी हमारे साथ होने का जो सबूत मुकद्दस पौलुस रसूल देते हैं। रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शफाअत भी करता है। यहाँ पर एक और जिम्मेदारी में नजर आती, स्टीफनस कहता है कि वो बाप के दाहिनी तरफ खड़ा है। खुदा के अख्तियार को यीशु इस्तेमाल करता है। दाहिनी तरफ बैठना, बादशाह के दाहिनी तरफ मौजूद होना, अख्तियार को शेयर करने की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि जब खुदा बाप के दाहिनी तरफ यीशु मसीह खड़ा होता है तो वो खुदा के अख्तियार को शेयर करता है, खुदा के अख्तियार को इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। और खुदा के दाहिनी तरफ यीशु का मौजूद होना यीशु की भी उसी कुदरत को जाहिर करता है जो खुदा की कुदरत, यीशु के बतौर खुदा कुदरत को इस्तेमाल करने को जाहिर करता है। और यहाँ पर फिर रोमी के खत में लिखा है कि वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शफाअत भी करता है। एक और जिम्मेदारी शफाअत करना, सिफारिश करना। और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ है, जो उसका जो तर्जमा है वो है इंटरसेशन। इसका जो यूनानी लफ्ज़ है एंतुन खानो, उसका मतलब है इंटरसेशन करना, एक्शन ऑफ इंटरवीनिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, कि किसी के बिहाफ पर इंटरवीन करना, किसी के बिहाफ पर काम करना, किसी के बिहाफ पर बात करना, सिफारिश कर देना। किसी की सिफारिश के मतलब को आप समझते हैं कि किसी को हम सिफारिश के लिए भेज दें। हम में से बहुत से लोगों ने इस बात को तजुर्बा किया होगा कि जब हम किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो हम किसी को सिफारिश के लिए भेजते, खुद नहीं जाते, किसी को भेजते हैं कि जाओ भी सिफारिश करो। इसी तरह के काम की जिम्मेदारी यीशु मसीह हमारे लिए अदा करता है, शफाअत करना, सिफारिश करना, कि यानी हमारी खातिर यीशु बाप के सामने प्लीड करता है, दरख्वास्त करता है, हमारे गुनाहों की माफी की खातिर हमारी सिफारिश यीशु मसीह बाप के सामने करता है। और एक बड़ी खूबसूरत ईमान से भरी बात पौलुस रसूल हमारे लिए बयान करता है कि वो बाप के दाहिनी तरफ है और हमारी शफाअत करता है, यानी हमारे बिहाफ पर, हमारी खातिर वो बोलता है, हमारी माफी के लिए वो अपने कफारे को पेश करता है, हमारी माफी के लिए वो बाप से हमारी खातिर दरखास्त करता और सिफारिश करता है। एक खूबसूरत जिम्मेदारी यीशु का आसमान पर जाने के वसीले से ही मुमकिन होती। उसका जाना हमारे लिए ज़रूरी ठहरता है, उसका आसमान पर चले जाना उसका इस दुनिया में रहने से ज़्यादा ज़रूरी। और उसके आसमान पर चले जाने से भी ईमानदारों को कोई नुकसान नहीं हुआ। शागिर्द नहते नहीं हो गए, शागिर्द बेहिस नहीं हो गए, शागिर्द बेबस नहीं हुए, बल्कि यीशु के आसमान पर जाने के बाद, उसकी बरकत लेने के बाद और उसके बाद रूह कुद्दुस के नाज़िल होने के वसीले से वो इतने मजबूत हो गए, इतनी उन्होंने कुव्वत पाई कि वही मौजज़ात जो यीशु करता था वो भी करते रहे और आज तक भी मुमकिन है, आज तक भी होते हैं। यानी यीशु के आसमान पर जाने से मसीहियों के लिए कोई फ़र्क या कोई मुसीबत या कोई परेशानी नहीं आई, बल्कि यीशु के हमारे साथ होने के वसीले से वो अपने वादे को भी पूरा कर रहा है और इसी तरह आसमान पर भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। ये यीशु की खिदमत का तसलसल है, उसका इस दुनिया में आना, इस दुनिया में हमारे दरमियान, इंसानों के दरमियान रहना, मौजज़ात करना और आखिरकार मसलूब हो जाना, फिर जिंदा हो जाना, फिर उसके बाद आसमान पर चले जाना और आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ बैठे होना, आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ मौजूद होना हमारे ईमान को मजबूत करता है कि उसकी खिदमत ख़त्म नहीं हुई, उसकी मिनिस्ट्री जारी है, उसका मकसद, खुदा का इलाही मंसूबा हमेशा के लिए जारी है और तकमील की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह इस दुनिया में कफ़ारे के मंसूबे की तकमील हुई, इसी तरह खुदा का मंसूबा ये है कि वह इस दुनिया को मुकम्मल तौर पर नया बना दे। और पौलुस रसूल रोमी के खत में कहता है कि तमाम मखलूक़ात दर्द ज़ह में पड़ी रहती हैं
اور مخلصی کی راہ دیکھتی ہیں، یعنی اس کائنات کو مخلصی کی ضرورت ہے، اس کائنات کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا الہی منصوبہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا کہ یسوع ہماری خاطر مصلوب ہوا اور زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا، یہ انسانوں کے لیے نجات کے منصوبے کی تکمیل ہے، لیکن پوری کائنات کی مخلصی کا جو منصوبہ ہے یسوع اس کو پورا کرنے کے لیے بھی آج بھی اپنی خدمت کو جاری رکھے ہوئے۔ پیدائش کی کتاب میں جہاں آدم اور حوا کو سزا ملی، وہاں پر اور بھی بہت سی چیزوں کو سزا ملی ہے۔ زمین تیرے سبب سے لعنتی ٹھہری، زمین کو بھی سزا ملی ہے، سانپ کو بھی سزا ملی، شیطان کو بھی سزا ملی، عورت کو بھی خدا نے پنشمنٹ دے دی کہ تو تکلیف کے ساتھ، درد کے ساتھ بچے چلے گی۔ مرد کو بھی سزا دے دی کہ تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا، زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ یعنی دنیا کی زمین کو بھی، دنیا میں انسان کو بھی، اور جو بھی اس گناہ میں ملوث ہوا سبھی کو خدا نے سزا سنائی۔ اور خدا کا منصوبہ یہ ہے، خدا کا الہی منصوبہ یہ ہے کہ وہ یسوع کے وسیلے سے اس ساری دنیا کو دوبارہ سے اس اصلی حالت میں واپس لائے گا جو آدم اور حوا کے گناہ کرنے سے پہلے تھے۔ زمین کو بھی وہ تبدیل کرے گا۔ اسی لیے رومی کے خط میں پالوس کہتا ہے کہ تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات جو زمین پر موجود ہیں، حتیٰ کہ زمین بھی مخلصی کی راہ تکتی ہے۔ اس زمین کو بھی مخلصی کی ضرورت ہے، کیونکہ زمین کو بھی خدا نے لعنتی ٹھہرایا ہے، زمین کو بھی سزا ملی ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کو نئے بنانے کا منصوبہ ہے، ان ساری چیزوں کو بدل دینے کا منصوبہ ہے جو یسوع کے وسیلے سے پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ اسی لیے یسوع کی خدمت کا تسلسل جاری ہے، اس کا آسمان پر جانا، باپ کے دائیں طرف ہونا اور وہاں پر موجود رہنا تاکہ ہماری شفاعت ہو، اور آخر کار وہ وقت آئے جب پوری دنیا، پوری کائنات مخلصی پائے۔ اس منصوبے کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، یسوع اس منصوبے کی طرف دنیا کو لے کر جا رہے ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، ایماندار اس وقت کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت کی آرزو رکھتے ہیں، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب دوبارہ سے بحالی آئے گی۔ اور اگر ہم اعمال کی کتاب کے اسی حوالے میں واپس جائیں جو تلاوت کی گئی تھی، تو وہاں پر پالوس جب شاگرد اس کی طرف دیکھ رہے تھے، 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں پر 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت اس حقیقت کو بیان کرتی، ہم آہستہ آہستہ اس تسلسل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو خدا کا الہی منصوبہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عید سعود یا یسوع کا صعود فرمانا خدا کے منصوبے کا حصہ ہے، یہ حادثاتی نہیں ہے، اچانک یسوع نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آسمان پر چلا جائے گا، یہ خدا کے الہی منصوبے کا حصہ تھا، اس کا پلان ہے جو پیدائش کی کتاب میں انسان کے گناہ کرنے کے وقت ہی بن گیا کہ خدا نے دوبارہ سے اس دنیا کو بحال کرنا ہے، اس منصوبے کا حصہ یسوع کا صعود فرمانا ہے۔ اور اس طرح سے دنیا اس تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جب خدا مکمل طور پر اپنے منصوبے کو اس دنیا پر لاگو کرے گا۔ وہ منصوبہ کیا ہے؟ یسوع کی دوبارہ آمد، یسوع کا دوبارہ آ جانا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین، یہ مکاشفہ کی کتاب حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ وہ آئے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ یسوع آسمان پر گیا، یہ اس کے خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ یسوع آسمان سے دوبارہ واپس آئے گا، یہ بھی خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ یسوع کا آسمان پر جانا ظاہری، خفیہ نہیں، تاریخی ہے،
शागिर्दों ने देखा, शागिर्दों ने बयान किया, शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखकर तजुर्बा किया कि उनका खुदावंद उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठाया गया है। और न सिर्फ बाइबल मुकद्दस बल्कि और कुतुब भी और मज़ाहब भी और दुनिया की कौमें भी इस बात का इकरार करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जिंदा उठाए गए। ये झूठ या मफरूजा नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी है जिसका हर एक जुबान इकरार करती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखती है। वो ये जानती है कि खुदावंद जिंदा आसमान पर गया और ये भी ईमान रखती है कि वो दोबारा से आएगा। जिस्मानी हैसियत में यीशु आसमान पर गया और इसी तरह से जलाली बदन के साथ, लाफानी बदन के साथ, कुव्वत और अख्तियार में वापस आएगा। और तसल्लीकियों का पहला खत उसका चौथा बाब बयान करता है कि जब वो आएगा, जब वो मुकर्रब फरिश्ते नरसिंगे की आवाज़ बड़ी ललकार के साथ उतर आएगा, यानी वो यीशु की कुदरत को बयान करता है। पालूस तसल्लीकियों के पहले खत के चौथे बाब में उसके आने की कुदरत को बयान करता है कि वो किस तरह से आएगा। वो बड़ी ललकार के साथ, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ के साथ, नरसिंगे के साथ उतर आएगा। यानी यीशु का आसमान से नीचे आना, दोबारा से जमीन पर उतर आना एक बहुत बड़ी कुदरत के साथ, एक बादशाह के तौर पर, एक खुदावंद के तौर पर जो इस कायनात को बदलने के लिए आ रहा है, उसके तौर पर होगा। यही तो तसलसल है इसकी खिदमत का, जो मैं पहले बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये खुदा के इलाही मंसूबे का तसलसल था कि वो आसमान पर जाए और उसी तसलसल के साथ कि वो इस कायनात को मखलसी देना चाहता है, बदलना चाहता है, तब्दील करना चाहता है, फिर से यीशु को वापस इस दुनिया में भेजे। यीशु फिर से इस दुनिया में आएगा और लोग उसको देखेंगे, लोग अपनी आंखों से उसका नज़ारा करेंगे कि वो कुदरत के साथ आ रहा है, वो फरिश्तों के साथ बादशाह की हैसियत से आ रहा है और हमेशा के लिए अपनी बादशाही को इस कायनात में कायम करने के लिए, इस जमीन पर कायम करने के लिए और हमेशा से इस जमीन को बदल देने के लिए आएगा। और मुकाशवा की किताब का 21वां और 22वां बाब इस हकीकत को बयान करता है। अगर हम 21वें बाब में चले जाएं तो उसका आगाज पहली आयत से होता है कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानदा रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए सिंगार किया। यहाँ पर नई आसमान और नई ज़मीन के कायम होने का जिक्र है, दुनिया के बदल जाने का जिक्र है, तब्दील हो जाने का जिक्र है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएं 21वें बाब में, तो यहाँ पर अगर हम 21वें बाब में 9वीं और 10वीं आयत को देखें तो फिर यहाँ पर दोबारा से जिक्र है। 9वीं आयत के आखिरी से शुरू होता है, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रे की बीवी दिखाऊं और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यहाँ पर दुल्हन कलीसिया को कहा गया, बर्रे की दुल्हन यानी यीशु की दुल्हन, कलीसिया यीशु की दुल्हन। और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया, उसमें खुदा का जलाल था। फिर उसके बाद 21वां बाब मुकाशवा की किताब और उसकी 22वीं आयत में अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। जो नई ज़मीन है, जो कायनात का बदल जाना है, जो ज़िंदगी का तब्दील हो जाना है, उसमें जो मखलसी है, उसमें जो खुदा का जलाल है, उसकी बुनियाद यीशु मसीह है, बर्रा उसका चिराग है। खुदा का तख्त और खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। उस शहर की, उस ज़मीन की जो नई है, जो इस दुनिया से मुख्तलिफ है, जो पाकीज़गी से भरी है, इस दुनिया की करप्शन से यानी गुनाह की करप्शन से आज़ाद एक मकदसी की दुनिया है, उसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है, उसका मरकज़, उसका चिराग यीशु मसीह है जो इस दुनिया में आए। और फिर उसके बाद 22वां बाब यीशु के आने को फिर से दावे को बयान करता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। और 12वीं आयत 22वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। यहाँ पर यीशु ने अपनी आमद के साथ एक और ऐलान भी किया, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास।
यानी यीशु का इस दुनिया में आना ना सिर्फ इस दुनिया को बदल देने का बायस है, हमारे लिए इनाम का भी साथ इंतजाम है कि यीशु का इस दुनिया से आसमान पर चले जाना, जमीन से आसमान पर जाना, वहां पर रहना, खुदा के दाहिनी तरफ होना और फिर दोबारा से वापस आना हमारे लिए उम्मीद पैदा करता है कि उसका आना हमारे लिए अजर का बायस है, बादशाही में शामिल होने का बायस है। लेकिन उसके लिए हमें सारे को तैयार होने की जरूरत है, दुआ की जरूरत है। और मुकाशवा की किताब का 22वां बाब इस दुआ का जिक्र भी करता है। 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। यानी हमने यीशु की आमद के लिए दुआ करनी है। हम अक्सर डर जाते हैं, आजकल के दिनों में बहुत डरे हुए हम में से अक्सर लोग बार बार पूछते हैं कि क्या बनेगा, यीशु आ रहा है, तो साथ ही हम डर भी जाते हैं। अगर कोई कह दे यीशु आ रहा है तो फिर हम डर भी जाते हैं। ये दुआ है ईमानदारों की, ये कलीसिया की दुआ है। यहाँ पर लिखा है मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत में, रूह और दुल्हन कहती हैं आ। दुल्हन कलीसिया, यानी कलीसिया की ये दुआ है कि यीशु आए। कलीसिया का ये इंतजार और आरज़ू होनी चाहिए कि यीशु आए। लेकिन इस आरज़ू और इस ईमान को हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे अजीजों, ये खुदा का इलाही मंसूबा है, ईद साउथ और फिर दोबारा से दूसरी आमद, यीशु का दोबारा से आना खुदा का मंसूबा है, जिसके लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद जल्द अपने मंसूबे को पूरा करे। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि यीशु आसमान पर गया है, जिंदा हुआ है, आसमान पर गया और फिर से आएगा और दुनिया में बादशाही को हमेशा के लिए कायम कर देगा। और ईमानदार उस बादशाही का हिस्सा होंगे, ईमानदार उस बादशाही का वारिस ठहरेंगे और उसमें हिस्सा पाएंगे, इनाम पाएंगे। खुदावंद की अदालत उसकी दोबारा आमद पर ज़ाहिर होगी, इसमें ईमानदार यीशु पर ईमान के वसीले से बरकत पाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, ईद साउथ, यीशु का साउथ फरमाना हमारे लिए बरकत का बायस है। यीशु का हर एक काम, उसकी हर एक बात, उसका हर एक फेर हमारे लिए बरकत का बायस है, इंसानों के लिए बरकत का बायस है, दुनिया के लिए, जमीन के लिए बरकत का बायस है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उसके मंसूबे का हिस्सा हैं। मेरे अजीजों, उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि जब वो दोबारा आए, कुव्वत और अख्तियार के साथ आए, तो हम उसकी बादशाही में शामिल होने वाले में हों, उससे इनाम पाने वालों में हों, ताकि उसकी बादशाही के वारिस होने के वसीले से हम मजबूत होकर दुआ कर सकें, दरख्वास्त कर सकें कि रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। हम में से हर एक जो यीशु की आमद के बारे में सुनता है कि वो आएगा, हमें ये कहना चाहिए कि खुदावंद आ। हमें ये आरज़ू रखने की जरूरत है। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हम उसके आने के लिए तैयार हो सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तू रहम कर, खुदावंद तू हमें मजबूत कर, हम कमज़ोर हैं, खुदावंद तू हमें मजबूत कर ताकि हम तेरी आमद के लिए तैयार हो सकें। खुदावंद तू रहम कर, तू पाक रूह की मामूरी बख्श दे, पाक रूह के वसीले से हमें तैयार करके हम कह सकें कि खुदावंद तू जल्द आ, खुदावंद तू आ, ताकि ये दुनिया बदल सके, ये नई बन सके, हम नए बन सकें और तेरी बादशाही में शामिल हो सकें। मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 357 गाएंगे। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों में यीशु जल्द आ रहा है। गीत नंबर 357, गीत नंबर 357। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है। उसके प्यार की शम्मा जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए, उसके प्यार की शम्मा जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए। हमको लेने वो आ रहा है, हमको
शहर में दाखिल होंगे जिनके किताबों में नाम मिलेंगे, कोई शहर में दाखिल होंगे जिनके किताबों में नाम मिलेंगे, उनको लेने वो आ रहा है, उनको लेने वो आ रहा है। बादलों पे यीशु चला रहा है, बादलों पे यीशु चला रहा है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम ये ईमान रखते हैं कि तेरा बेटा यीशु जल्द आ रहा है। हम वक्त के बारे में नहीं जानते, ये तेरा मंसूबा है, ये तेरा मुकर्रर करदा वक्त है जिसको हम नहीं जान सकते। इंसान इस मंसूबे को नहीं जान सकता, लेकिन हमारा ईमान है कि तेरा बेटा यीशु जिंदा है और इस दुनिया में दोबारा से हमारे इस दुनिया को बदलने के लिए, बादशाही करने के लिए, मखलसी के लिए, अदालत के लिए और हमें बादशाही का वारिस बनाने के लिए आ रहा है। खुदावंद इस ईमान में हमें मजबूत कर ताकि हम तेरे बेटे यीशु की राह देख सकें। खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ हो। ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरे, हमारी हिफाजत कर, हमारे घरानों के हर एक फर्द की हिफाजत कर। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत में हम महफूज हो जाएं और बरकत पाएं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और हमारे रहनुमाई कर, हमारे साथ हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज तू बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।